Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the remaining topic of principle of intervention area. The particular topic related to B.Ed semester 4 unit 1 paper creating an inclusive school. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ B.Ed सेमेस्टर 4 के अंतर्गत पेपर नंबर 12 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में यूनिट 1 के हस्तक्षेप के क्षेत्र के बारे में। हस्तक्षेप के क्षेत्र के 5 पॉइंट इसके पूर्व के वीडियो में मैं बताया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं जो बचे हुए 5 पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एरिया ऑफ इंटरवेंशन, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली एम्फेसाइज barrier free, that means to create barrier free environment, engagement or involvement in sports or creation, and also provide social security and implementation of rules and regulation, that is the most important and vital. भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम 2006 के तहत जो जिस क्षेत्र में इंटरवेंशन या हस्तक्षेप की आवश्यकता है उसमें खासकर अवरोध रहित वातावरण कैसे उसके लिए काम किया जाए, साथ ही साथ इस चीज़ पर कि सामाजिक सुरक्षा उन्हें कैसे हो, स्पोर्ट्स यानी खेलकूद जो गतिविधियां हैं उन सभी में उनकी भागीदारी सही से कैसे हो उसको सुनिश्चित किया जाए, और जो रूल रेगुलेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन कैसे सही तरीके से हो, इस पर जो है वह हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो मैं अब आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 paper 12 creating an inclusive school. National Policy for Person with Disability Act 2006 Principal Areas of Intervention. In the earlier video I have also discussed the 5 point number 1 2 3 4 5 and the remaining 5 point will be discussed now. Number 6 barrier free environment, number 7 social protection, number 8 research, number 9 sports, recreation and cultural activities, and 10 number implementation of national policy. Number 1 barrier free environment. For creation of barrier free environment the following strategy will be adopted. Number 1 public buildings, transport including road and railway platform, bus stop, airport, mode of transports, playground, open spaces etc. will be made accessible. Second point, use of sign language in the all public functions. Number 3 modification of curriculum. Next, full adoption of comprehensive building and bylaws for barrier free environment for the person of disability. Next, state transport undertaking will ensure disabled friendly features in their vehicles. The government will ensure that industrial establishment, offices and other places provided disable friendly workplace. Next, proactive step will be taken to ensure disability friendly IT environment in the country. Banking system will be encouraged also. And last one, communication needs of the person with disability, and the example is braille, tape services, large print and other appropriate technologies. Now next, number 7 social protection. The following steps will be taken to provide adequate social security to the person with disability. Number 1 a system of regular review of the policies of tax relief. Next, state government and union territory administration will be encouraged to
rationalize the amount of pension and unemployment allowance. Next one, Life Insurance Corporation of India has been providing insurance cover to person with a specific type of disability. And the last one, there is a need to encourage all insurance agencies to cover person with disabilities without exception. Now number 7, research. Research for developing new technologies for person with disabilities will be encouraged with international cooperation. Now the following aspects: number 1, social cultural aspects of disability. Number 2, develop social indicators. Number 3, generate statistics about the employment status of person of disabilities. Next, study causes of different types and level of incidence of disability. Genetic research to minimize incidence of disability. Adaptive technology research focusing on enhanced personal mobility. Now next, effective user friendly and durable aids and appliances with the help of technology and other effective activities. Now the all facts related to research. And the last one for research, Ministry of Social Science and Technology shall set up Rehabilitation Technology Center for coordinating and undertaking research and development. Now number 9, sports, recreation and cultural activity. Following steps: number 1, make places for recreation, cultural activities and sports. Next point, travel agency, hotel, voluntary organization and others involved in organizing recreational activities. Next, identification of talent amongst persons with disabilities. Formation of sports organization and cultural societies. Next, a national award for excellence in sports for person with disability. Now number 10, implementation of national policy. The Ministry of Social Justice and Empowerment will be nodal ministry to coordinate all the matters relating to implementation policy. And the next one is NGO and other stakeholders emphasize to represented these types of rules and regulation fully implemented in all areas. Next, the Ministries of Home Affairs and Health and Family Welfare, Rural Development, Urban Development and all along with Youth Affairs, Railway and all, Department of Elementary Education and Literacy, implement all rules and regulation and also organize a training program for implementation of the policy of disability. Next point, the Chief Commissioner for Disability at central level and state level shall play key role in the implementation of national policies. And last one is Panchayati Raj institution will play a central role in the implementation of national policy to address local level issues. Now all matters in हिंदी। विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र, इसके 5 पॉइंट को इसके पूर्व के वीडियो में मैं आपसे विस्तार से बता चुका हूं। आज मैं जो रिमेनिंग 5 पॉइंट है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। नंबर 6, अवरोध मुक्त वातावरण। जब अवरोध मुक्त वातावरण की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से वैसे हस्तक्षेप के क्षेत्र के बारे में बात की गई है जहां पर कि विकलांग व्यक्तियों को समस्याएं अलग अलग तरीके की आती हैं और उनका कैसे समाधान हो, इस पर कुछ जो नीतियां अपनाई जाएं उस पर मुख्य रूप से है। सार्वजनिक स्थानों के नंबर 1, सार्वजनिक स्थानों के कार्यस्थलों, बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म, हवाई अड्डों या आवागमन के अन्य स्थानों इत्यादि पर असमर्थी या विकलांग व्यक्ति
के पहुंच में हो। सभी सार्वजनिक कार्यों में संकेत भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित दिया जाएगा। सेवारत सरकारी भवन निर्माता और इंजीनियरों को अवरोध रहित भवन निर्माण करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए। स्थान संबंधी मानक उपनियमों को सभी राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाए। सरकार यह निश्चित करेगी कि औद्योगिक संगठन, दफ्तर तथा कार्य करने स्थल तथा संस्थान अपने विकलांग कर्मियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान रखें। पूरे देश भर में विकलांग व्यक्तियों की सुविधा अनुसार सूचना तकनीकों को परिवर्तित करके विकलांगों के लिए उपयोगी बनाया जाए। बैंक की सेवाओं को असमर्थी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और लास्ट में सार्वजनिक उपयोग के लिए सभी भवनों को विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में परीक्षण किया जाए, जिससे कि इन व्यक्तियों यानी सुविधाओं का परीक्षण किया जाए, जिससे कि इन व्यक्तियों की पहुंच वहां तक हो सके। अब नंबर 7 की बात करें, सामाजिक सुरक्षा। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रावधान की व्यवस्था की गई है, नंबर 1, विकलांग व्यक्तियों को करों में छूट देने की पूरी सुविधा हो, यानी टैक्स में छूट हो। दूसरा, राज्य सरकारों या केंद्र शासित राज्यों में विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता पेंशन एवं बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रोत्साहित किया जाए। भारतीय बीमा निगम द्वारा विशिष्ट प्रकार के बाधित व्यक्तियों के लिए बीमा के प्रावधान किए जाएं और उसके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। अब जब रिसर्च की अगर बात करते हैं तो अनुसंधान यानी पॉइंट नंबर 8, इसमें विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कुछ जो बातें कही गई अनुसंधान के क्षेत्र में उन्हें वरीयता दी जाए। नंबर 1, डिजेबल से बाधित यानी विकलांग से बाधित सामाजिक संस्कृति पक्ष को विशेष महत्व दिया जाए। विशेष रूप से अपंग व्यक्तियों को या दैहिक जो अपंग हैं उनके व्यवहार और बाकी चीज़ों को या उनके आत्मसम्मान और विश्वास के प्रति भागीदारी सुनिश्चित की जाए या उनकी सहभागिता हो। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के स्तर के लिए स्तरों के विषय को बढ़ाने के लिए तथा दुर्घटनाएं या रोजगार कार्यालय में दुर्घटनाओं अथवा आपदाओं के शिकार हुए वैसे लोगों को लाभान्वित किया जा सके। विभिन्न प्रकार के जो विकलांग व्यक्तियों की कारणों की खोज की जाए और घटनाक्रम का अध्ययन किया जाए। खासकर वंशानुक्रम का अध्ययन भी जरूरी है कि ये कहीं वंश तो नहीं ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उस पर भी अनुसंधान किया जाए। समायोजित तरीके से शीघ्र तकनीक को विकसित किया जाए जिससे कि विकलांगता को कम किया जा सके। नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयोग, नए तकनीक का भी प्रयोग किया जाए, जैसे कि ब्रेली लिपि या और भी जो उनके पहुंच की चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था की जाए। लास्ट में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के तत्वाधान में रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे कि वहां पर अनुसंधान और विकास कार्यों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। नंबर पॉइंट 9 की बात करें तो खेलकूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप में जो कुछ मुख्य बातें हैं। नंबर 1, खेल क्रीड़ाओं या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थान की व्यवस्था की जाए, जैसे खेल का मैदान, जिम खाना, ऑडिटोरियम इत्यादि। नेक्स्ट, मनोरंजन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए समस्त यात्रा एजेंसियों, संघ सेवी संगठनों और उससे संबंधित जो भी व्यक्ति विकलांग जुड़े हुए हों उनसे संबंधित उस तरह की विशेष उनकी यात्रा के लिए कुछ छूट प्रावधान या छूट में विशेष व्यवस्था की जाए। गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं की मदद से विकलांग व्यक्तियों को विशेष कौशल या सृजनात्मक व्यवस्था पर पुनर्बलन स्थापित किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उसको उन्हें विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि उसमें वो भाग ले सकें और राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था भी की जाए जिससे कि विकलांग व्यक्तियों का उत्साह बढ़ सके। लास्ट में कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व पॉइंट नंबर 10 यानी राष्ट्रीय नीति के लिए क्रियान्वयन, इसमें नोडल मंत्रालय क्रियान्वयन संबंधी समन्वय स्थापित करें, सामंजस्य स्थापित करें जिससे कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय इस पर काम मुख्य रूप से करे। राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया जाए जिसमें कि सभी लोगों को इसमें गैर सरकारी संस्थाएं या उनके माता पिता या सभी लोगों को जोड़ा जा सके। पंचायती राज स्तर पर भी व्यवस्थाएं हों। केंद्र एवं राज्य सरकारें मुख्य रूप से राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वयन करने पर रचनात्मक कार्रवाई करें। ग्रामीण शहरी विकास मंत्रालय, नवयुवक मंत्रालय, ये नवयुवक कल्याण तथा खेलकूद विभाग, रेलवे,
विज्ञान एवं तकनीकी, सांख्यिकी मंत्रालय मंजूरी, पंचायती राज या प्राथमिक या साक्षरता विभाग, माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग, सूचना और तकनीकी इत्यादि सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके 5 वर्षीय योजना का निर्माण करें, जिससे कि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, इसलिए उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाए। समुदाय अपने प्रयासों और गैर सरकारी संगठनों की मदद से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और प्रत्येक 5 वर्ष में एक राष्ट्रीय नीति का व्यापक अवलोकन हो, जिससे कि उसकी डाटा और किए गए कार्यों की स्पष्ट जो है वो अवलोकन और व्याख्या कर सके और आगे की कार्य योजना तैयार हो सके। इस प्रकार से मैंने इसके बारे में पूरी तरह से जो 5 व्यू थे उसको मैंने स्पष्ट किया। ऊपर जो भी डिस्कशन मैंने किया, इससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि नियम बनाना अति आवश्यक है विकलांगता नियम 2006 के तहत, लेकिन उसका कार्यान्वयन सही तरीके से हो, इसलिए हस्तक्षेप के जो क्षेत्र हैं, जो हस्तक्षेप के जो 10 पॉइंट बताए वो महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से सही तरीके से क्रियान्वयन हो तो विकलांगता नियम के जो नियम 2006 की जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है वो निश्चित ही सफल होगी। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के बारे में शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।